Hello class. In today's video lecture, we will study about the properties of ionic and covalent compounds. In the last video, I have give you some knowledge about the ionic and covalent bond and their compounds. Now we will study about some properties of ionic and covalent compound in the chapter metal and non-metals. Okay, now the properties. First we study the properties of ionic compound. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए दैट द कंपाउंड्स आर मेड बाय द केमिकल बॉन्ड नेम्ड आयनिक बॉन्ड और बाय द help of joining of two types of oppositely charged ion called cation and anion is known as the ionic compound. Okay, now the first property of ionic compound is that ionic compound are usually crystalline solids. What are crystalline solid? Crystalline solids are those solid which are found in the crystal state or their solids are found in the crystal states. Actually solids are two types. First are those solid whose particles are arranged in well manner, and the secondly the ionic compound whose particles are arranged in random manner. If the particles of a solid are arranged in the well arranged manner or well manner, then the particles or the solids will known as the crystalline solids. Okay, so the ionic compounds are usually crystalline solid. crystalline solid वो होते हैं जिसमें उनके पार्टिकल्स वेल अरेंज मैनर में लगे हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड is a crystalline solid, and for like it the potassium chloride and other ionic compound who have the two components as ions, positively and negatively charged ion, they have the crystalline solids. Okay, solid structure. So the ionic compound are solids because oppositely charged ions attract one another strongly and फॉर्म रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इस लाइन का ये मतलब है कि आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वे आपस में एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड हो जाते हैं. दैट्स वाई दे विल फॉर्म द सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स. ओके, the crystals of ionic compounds are hard and brittle. मीन्स क्रिस्टल जो होते हैं किसी भी सॉलिड कंपाउंड के, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके क्रिस्टल्स होंगे तो वो हार्ड होंगे और ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स अगर उनको तोड़ा जाए तो बहुत जल्दी वो पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. दैट इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका एग्ज़ाम्पल भी अगर देख लें हम तो एग्ज़ाम्पल में देख लीजिए कि आपने सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट के आपने सॉलिड क्रिस्टल्स देखे होंगे. सॉलिड फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी जिसे आप हिंदी में डेली वाला नमक कह सकते हैं. तो अगर उसको आप क्रिस्टल को देखें तो ये इसके क्रिस्टल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और अगर उनको किसी हैमर की हेल्प से अगर ब्रेक किया जाए तो वे जल्दी से एक पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. दैट मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर. ओके, नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ऐसा क्यों? आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो इसके पीछे एक ये वजह हो सकती है दैट द मेकिंग ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ
the electrostatic force of attraction between two oppositely charged ion. Okay, for example, the sodium chloride ionic compound have very high melting point, that is at 800 degrees Celsius, and the boiling point of sodium chloride means common salt is 1413 degrees Celsius. Okay, it is due to the very high content of electrostatic force of attraction between two oppositely charged ion in the condition of a sodium chloride crystal, in which sodium and chlorine ions or chloride ions are attracted towards each other by the action of very high content of electrostatic force of attraction between these two oppositely charged ions. Okay, a lot of heat energy is required to break this force of attraction in the boiling and melting. That's why the boiling and melting point of the ionic compounds is very high. Okay, अब चूंकि ये आयनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए या जिसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है. दैट्स वाई द आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इज़ 1413 degree Celsius. Okay, that's why ionic compounds have high melting and boiling points. Okay, now the next property, ionic compounds are usually soluble in water but insoluble in organic solvents. अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं. आयनिक कंपाउंड हमेशा दो टाइप ऑफ आयंस को ज्वाइन करने से बनते हैं. मींस कैटायन एंड एनायंस को अगर हम ज्वाइन करें बीच में, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड विल नोन एज द आयनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन. ओके, अब चूंकि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये एक अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को ज्वाइन करने से बनते हैं, यानी इसमें दो अपोजिट पोल होते हैं. एक पोल है पॉजिटिव पोल और दूसरा है नेगेटिव पोल. दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज पोलर कंपाउंड्स. अब चूंकि ये पोलर कंपाउंड्स हैं तो इनकी ये हैबिट है कि ये हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल हो सकते हैं. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो सकते. अब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में वाटर की ब्रेकिंग समझाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था वाटर व्हेन डिसोसिएट्स इन इट्स आयंस इट विल गिव H+ एंड OH- आयन. दैट्स वाई वाटर विल नोन एज अ पोलर सॉल्वेंट. इसका मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसके कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करें तो वो दो टाइप के आयंस में टूट जाए, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन. ऐसे केस में जो सॉल्वेंट होता है दैट इज नोन एज पोलर सॉल्वेंट. ओके, एंड इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो पोलर. दैट्स वाई पोलर कंपाउंड्स विल डिजॉल्व ओनली इन द पोलर सॉल्वेंट. इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे. अब क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आना चाहिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं. नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. अगर आप इनके फॉर्मूला पर गौर करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, केरोसिन का तो कोई विशेष फार्मूला नहीं होता है, बेंजीन C6H6, एल्कोहल CH3OH. तो इस तरीके से ये जितने भी मैंने आपके सामने कंपाउंड के फार्मूले रखे, इनको अगर आप डिसोसिएट करना चाहें तो ये डिसोसिएट नहीं होते, ये आयन फॉर्म नहीं करते. अब चूंकि ये कंपाउंड
किसी भी तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज आयन नहीं बनाते, दैट्स वाई दीज सॉल्वेंट्स विल नोन एज नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इनमें हमेशा नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिज़ोल्व हो सकता है, इसीलिए इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। जैसे कि ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे क्या क्या कहलाते हैं? दीज ऑल आर नोन एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इनमें हमेशा पोलर सॉल्यूट ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, सॉरी, और नॉन पोलर सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एल्कोहल में सॉल्ट को डिज़ोल्व करना चाहें, देन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट विल नॉट डिज़ोल्व इन द एल्कोहल, ठीक है, बट द शुगर विल डिज़ोल्व इन द एल्कोहल बिकॉज शुगर एंड एल्कोहल बोथ आर नॉन पोलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑल द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गिवन above, okay, for example benzene and kerosene oil, okay. Now the last property of ionic compounds. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water, ठीक है। अब ऐसा क्यों? आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है जब हमारे पास भरपूर मात्रा में आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए या हीट कंडक्शन के लिए हमारे पास आयंस का होना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जब भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, या फिर उनको अगर हम मेल्ट करें देन ऑल्सो दे विल फॉर्म देयर आयंस और दे विल चेंज इन देयर आयनिक स्टेट, ओके। इन दैट केस, as the ionic compound in their aqueous solution or in their molten state forms their ions, that's why in the molten state or in their aqueous solution they will conduct the electricity. अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम क्लोराइड क्या नॉन मोल्टन और नॉन एक्वस स्टेट यानी सिंपल सॉलिड स्टेट में क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आयंस फ्री स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दें या सॉल्ट को मेल्ट कर दें किसी भी तरीके से, देन इन बोथ द केसेस इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी and then it will be the conductor in its molten or aqueous solution state, okay. Now अब ऐसा इसलिए भी होता है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द आयन आर हेल्ड टुगेदर विद अ फिक्स्ड पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट में चूंकि आयंस जो हैं एक वेरी हाई कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं और उसमें से आयन अलग नहीं हो सकता, दैट्स वाई इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नाउ अब मैं आपको इस टॉपिक के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं समझाना चाहता हूँ, इन विच वी हैव टेकन सम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ बीकर, और इसमें हमने कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसको एक अरेंजमेंट के थ्रू, वायर अरेंजमेंट के थ्रू हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब ऑन हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हेन मेड इन वाटर इट विल चेंज इन देयर आयंस, आयनिक स्टेट, एंड वी नो very well that in ions they are capable to conduct the electricity. That's why in aqueous solution state the sodium chloride will capable to conduct the electricity, okay. Now class, we will try to study the properties of covalent compounds.